Hello students, today we are going to start the external genitalia of female. जैसा हमने मेल जेनेटेलिया में स्क्रोटम, पेनिस, इंग्यूनल कैनाल, मिसोर्चियम, गवर्नाकुलम, कॉर्डिस एटसेट्रा पढ़ा था, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर फीमेल में सबसे पहले ये देखना है कि फीमेल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन कौन कौन से स्ट्रक्चर करते हैं और फिर हमें उसकी डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले हम ये देखें कि आखिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया का फॉर्मेशन करने वाले स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो सबसे पहला है मॉन्स प्यूबिस, विच इज आल्सो कॉल्ड एज मॉन्स वेनेरिस। द सेकंड इज क्लाइटोरिस, थर्ड इज लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एंड another is vestibule or urinogenital sinus, and last one is related perineum. So let us discuss these structures in detail. Here are the external genitalia of female. At the anterior most part of the genitalia, here is the mons pubis. This is mons pubis. Here mons veneris or mons pubis. It is the anterior most portion of the external genitalia, which is a pad or cushion like in structure, and it is made up of subcutaneous connective tissue, and it is laying in front of pubis, and it is covered by a pubic hairs in adult female. Okay, after this mons pubis, the outermost elevation, this one, the outermost elevation of the external genitalia here is formed by a fleshy folds of skin, and these are the large fleshy folds of skin which forms the elevation or the outermost boundary of the external genitalia of female, and this is called as the labia majora. This is the labia majora. This is the labia majora, and this labia majora itself consists of two layers. This is the outer layer of labia majora, and this is innermost. It is the innermost layer. This outermost layer of labia majora consists of sebaceous glands, sweat glands, and hair follicles, while in its innermost layer the hair follicles are absent. Hair follicles are absent. Just below the labia majora, the less or small folds of skin are present just below the labia majora. These are also the two folds of skin, 1 and 2. And in between these folds of skin, a space is present which is called as vestibule, which is called as vaginal vestibule or urinogenital sinus, and these small folds of skins are called as labia minora. This is labia minora, and it is hairless. This labia minora forms a clitoris at its anterior most part when these folds of skin unite together. जब ये लेबिया माइनोरा एंटीरियर एंड पर आपस में यूनाइट होकर जुड़ जाते हैं तो ये एंटीरियर एंड पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन करते हैं, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस. एंड दिस क्लाइटोरिस इज मेड अप ऑफ two erectile tissue bundles, and these two erectile tissue bundles are called as corpora cavernosa. It is just similar to that of penis of male, and hence it is considered as homologous to the penis of male. Similarly, the labia majora are considered homologous to the scrotal sac of male. Remember these points, these are very important. Labia majora are considered homologous to scrotum of male, and clitoris is considered homologous to the penis of male. As
The penis is made up of 3 erectile tissues bundles. Clitoris differs from the male penis as it is very much reduced in size and does not have any passage. Now, if we see the posterior lower end of this labia minora, तो ये लेबिया जो माइनोरा हैं ये बेटा मिड लाइन पर, एट मिड लाइन ऑफ दिस जेनेटिलिया एट लोअर पोर्शन, दीज लेबिया माइनोरा अ फोल्ड्स ऑफ स्किन मीन्स लेबिया माइनोरा की जो स्किन्स होती हैं ये लोअर एंड पर आपस में फ्यूज होकर फोरचेटी कहलाती हैं. तो फोल्ड्स ऑफ स्किन ऑफ लेबिया माइनोरा एट द लोअर पोर्शन ऑफ द फीमेल जेनिटल portion at midline axis is called as fourchette, and the area between fourchette and the anus is called as a perineum. This is called as the perineum. This is the perineal region. In rabbit and certain mammals, this perineum consists of perineal glands which secrete certain substances which attract the opposite sex during copulation, but in human female perineal glands are absent. The space which is present between the labia minora is called as a vestibule or urinogenital sinus, in which the 2 openings are present. One in the lower portion, it is opening of vagina, that is called as vaginal orifice. अभी हमने देखा था इस vaginal orifice पर आपके मेम्ब्रेनस सेप्टम था जिसे हमने हाइमन कहा था, और हाइमन के बिल्कुल सेंटर में जो ओपनिंग थी उसी से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर ऊज आउट होता है. और इस जेनेटिलिया के एंटीरियर पार्ट पर, वेस्टिब्यूल के एंटीरियर पार्ट पर यूरिथ्रल ओरिफिस पाई जाती है, यूरिथ्रा की ओपनिंग. और इस यूरिथ्रल ओरिफिस के दोनों लैटरल साइड पर स्किनीज ग्लैंड या पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है. Means Skinny's glands or paraurethral glands lies on both the lateral side of the urethral orifice, and these paraurethral glands are considered homologous to the prostate glands of male. Similarly, on both the lateral sides of the vaginal orifice, one pair female reproductive glands, that is called as Bartholin glands, are present. Which glands? Bartholin glands are present. These glands are considered homologous to the Copper's glands of male, and these glands secrete a viscous fluid that supplements lubrication during sexual intercourse. While the paraurethral glands or Skinny's glands, which are present on both the lateral sides of the urethral orifice, are numerous but minute glands. Numerous and minute glands. So, all these points are very important regarding the external genitalia of female. चलिए अब हम नेक्स्ट अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज ब्रीस्ट. ब्रीस्ट are the developed mammary glands which is made up of glandular tissues. It lies over the pectoralis major muscles on the front wall of the thorax. तो ये thorax पर front wall पर pectoralis major muscles पर पाए जाने वाले developed mammary glands हैं. संख्या कितनी होती है इनकी? 1 pair. In female during puberty, these breasts develop under the influence of female hormone, that is called as estrogen and progesterone. The external projections which are present on these breasts are called as nipples, and at the surrounding area around these nipples, a circular pigmented area of skin, which is deep pink to light brown in color, are present.
This is called as areola. This is called as areola or areolae. This is areola. So areola are the pigmented structure around the nipples. Let us see the internal structure of breast. If we talk about the internal structure of breast, as I have just told you that it is made up of glandular tissue. So there are three types of tissues are present in this mammary glands. First is glandular tissue, and this glandular tissue forms approximately 12 to 20 mammary lobes in each breast. This is one breast, and this single breast consists of approximately 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कितने lobes? How many lobes? 15 to 20 mammary lobes are present in a single breast. Okay, this is one lobe, and each lobe consists of many alveoli. और इस लोब के अंदर बहुत सारे एल्वलाई होते हैं. इन लोब्स के अंदर बहुत सारे एल्वलाई होते हैं. लेकिन जरा हम इन लोब्स के बाहर की बात करें पहले, तो इन लोब्स को बाहर से एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन डक्ट को और एल्वलाई को. ये जो आपके एल्वलाई थे, ये एल्वलाई जो है बेटा, जो लोब्स के अंदर थे, इन लोब्स के अंदर क्या था? एल्वलाई. और इन एल्वलाई को सपोर्ट प्रोवाइड करते बेटा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. और ये एल्वलाई जो हैं, सेवरल जो एल्वलाई हैं बेटा, इन सेवरल एल्वलाई से आपके सेवरल मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं. सेवरल मेमोरी ट्यूब्यूल्स. और ये जो सेवरल मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेवरल मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक मेमोरी डक्ट में जाकर खुलते हैं. यहां पर वन सिंगल मेमोरी डक्ट. हियर इज अ मेमोरी डक्ट. यू कैन सी single memory ducts. So in each lobes, single lobes, several alveoli are present. बेटा alveoli एक sac like structure होते हैं जिसमें मिल्क का सिंथेसिस होता है. और ये सिंथेसाइज मिल्क जो है वो बहुत सारी, हर एल्वलाई से एक मेमोरी ट्यूब्यूल्स जुड़े होते हैं. उन मेमोरी ट्यूब्यूल से आपके ये मिल्क बाहर आता है और पहुंचता है यहां पर. यहां पर एक सिंगल डक्ट, तो एक सिंगल मेमोरी डक्ट निकलती है एक लोब से. मेमोरी लोब्स कितने थे? 15 से 20. और ये जो मेमोरी डक्ट होती हैं, ये मेमोरी डक्ट खुलती हैं मेमोरी एम्पुला में, एक फूले हुए स्ट्रक्चर में. इसमें दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला, मेमोरी एम्पुला. और मेमोरी जो एम्पुला होता है ये सिंगल होता है. और ये सिंगल मेमोरी एम्पुला एक सिंगल लेक्टिफेरस साइनस या लेक्टिफेरस डक्ट में जाकर खुलता है. और ये लेक्टिफेरस डक्ट आपके खुलती हैं निपल्स पर. ओके, ये निपल्स. तो ये पूरा पैसेज हो गया बेटा. यहां से एल्वलाई में, हर लोब्स के एल्वलाई में मिल्क सिंथेसिस होता है. तो लोब्स कितने होते हैं? 15 से 20. और वो एक लोब के अंदर बहुत सारे एल्वलाई या एसनाई होते हैं. दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ सेल्स वेयर द मिल्क इज सिंथेसाइज्ड. एल्वलाई मैनी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक सिंगल मेमोरी डक्ट में खुलती है. और ये सिंगल मेमोरी डक्ट मेमोरी एम्पुला में खुलते हैं. मेमोरी एम्पुला कितने होते हैं? एक. और ये मेमोरी एम्पुला एक सिंगल लेक्टिफेरस डक्ट में खुलता है. और ये सिंगल लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ खुलते हैं? निप्पल में. ये पूरा पैसेज हुआ. और बेटा ये जो डक्ट हैं और ये जो एल्वलाई थे लोब्स के अंदर, इनको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है? तो आपका आंसर होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. लेकिन ये जो लोब्स है बेटा, इन लोब्स के बाहर, इनके बीच में फैटी या एडिपोज टिश्यू की लेयर्स होती हैं. सो दिस फैटी टिश्यू आर फाउंड बिटवीन लोब्स एंड कवर्स द सरफेस ऑफ ग्लैंड्स, दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स. एंड द अमाउंट ऑफ दिस टिश्यू डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ब्रीस्ट. तो ब्रीस्ट का साइज इन्हीं एडिपोज टिश्यू पर डिपेंड करता है. और बेटा ये चेस्ट पर पाई जाने वाली ये आपकी रिब्स है, और रिब्स के बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स, और ये चेस्ट पर पाई जाने वाली थोरेक्स रीजन में ये है पेक्टोरिस मेजर मसल्स. तो यहां पर ये पूरा पैसेज है डक्ट का. ये लोब्स हो गए 15 से 20. एक लोब है सिंगल, मैनी एल्वलाई,
many alveolar tubules which enters into the one memory duct opens into one memory ampulla, and one memory ampulla opens into one single lactiferous duct which opens on nipples. ओके, तो ये पैसेज बेटा याद रखना है, और इसी पैसेज के थ्रू आपके जो मिल्क है वो मेमोरी ग्लैंड से बाहर निप्पल के थ्रू इजेक्ट आउट होता है जब चाइल्ड सकलिंग रिफ्लेक्स शो करता है. ठीक है, मिल्क कहां सिंथेसाइज होता है? एल्वलाई में. Let us discuss about the hormones related with breast or related to breast. Here are the four hormones: estrogen, progesterone, prolactin and oxytocin. Let us discuss the role of estrogen. It helps in the development of parenchyma. Parenchyma means all the tissues, connective tissues and fatty tissues. इनके development और जितना भी ductular system था बेटा, memory ducts and tubules, उन सभी डक्टुलर सिस्टम के डेवलपमेंट में मदद करता है ईस्ट्रोजन, एंड इट स्टार्ट सिक्रीटिंग आफ्टर प्यूबर्टी. सिमिलरली द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्वुलर एसिनाई. तो एल्वलाई के डेवलपमेंट में मदद करते हैं प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन इन एल्वलाई में सिक्रीटरी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं. तो आप याद रखना, एल्वलाई में सिक्रीशन कौन प्रमोट करता है? प्रोजेस्टेरोन. What is the role of prolactin? It is having a very important role in milk synthesis, and it is also called as a motherhood hormone. Prolactin मिल्क के सिंथेसिस में, मतलब कि मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करता है. और ये ऑक्सीटोसिन जो है, दिस ऑक्सीटोसिन हेल्प इन इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑफ मिल्क. मीन्स बाय द action of oxytocin, the milk is released from the mammary glands by causing the contraction of epithelium cells. These epithelium cells surrounds the lactiferous sinus. So before the milk is released out from the nipples of mammary glands, the milk is stored in the lactiferous sinus. So when the suckling reflex is sent to the hypothalamus, hypothalamus releases the oxytocin, and this released oxytocin, ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस बेटा हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन रिलीज कहां से होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी से, और वहां से रिलीज होकर ये इन मायो एपिथेलियम सेल्स पर एक्ट करता है, विच इज प्रेजेंट अराउंड द लैक्टिफेरस साइनस और लैक्टिफेरस डक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. और इस प्रकार से इन मायो एपिथेलियम सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और तब जाकर मिल्क का इजेक्शन होता है. बेटा ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इसका एक और रोल है. इसमें ये मिल्क के सिंथेसिस को प्रमोट करता है बाय इंक्रीजिंग द सिक्रीटरी एक्टिविटी. ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स ऑफ एपोक्राइन इन नेचर. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ब्रीस्ट or the mammary glands are the modified sweat glands of apocrine in nature. बेटा ब्रीस्ट में, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड्स में जो एपिथेलियम होते हैं, दे आर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर प्रोलैक्टिन एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में, और इसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी को बढ़ाता है. यदि अब हम फंक्शन की बात करें बेटा मेमोरी ग्लैंड्स की, तो बताइए क्या फंक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड्स का? सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क. जस्ट अभी हमने देखा है. दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज लैक्टेशन. सो लैक्टेशन इज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. तो लैक्टेशन कब होता है? जब चाइल्ड का बर्थ होता है, और लास्ट डेज ऑफ प्रेगनेंसी में आपके लैक्टेशनल एक्टिविटी जो है, उनको प्रमोट करने वाले हार्मोन की संख्या भी फीमेल के ब्लड में बढ़ने लगती है. अब हम बात करते हैं ह्यूमन मिल्क की. तो बेटा जब चाइल्ड का बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, द मिल्क विच इज रिलीज्ड इन फर्स्ट 1 to 3 days, इट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. It is called as colostrum, which is rich in fat content, and it provide nourishment. It provide nourishment to the born baby.
The human milk consists of water and organic and inorganic substances. The main constituents are fat, casein. Casein is the milk protein which is present in milk, and the milk sugar which is present in milk is called as lactose. Other than this milk protein and milk sugar, sodium, potassium, calcium, etc. mineral salts are also present along with certain vitamins. But एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, मिल्क इज पुअर इन आयरन कंटेंट. मिल्क इज पुअर इन आयरन कंटेंट. मिल्क में आयरन कंटेंट कम होता है. एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, यदि आप मिल्क के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो विटामिन सी इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन मिल्क. यदि आपसे कोई पूछे कि मिल्क सिक्रीशन को रेगुलेट कौन करता है, तो आपका आंसर होगा बेटा नर्वस सिस्टम. ओके. अब यदि आपसे कोई पूछे कि नर्सिंग जो वुमेन होती है उसमें कितना मिल्क पर डे प्रोड्यूस होता है, तो आप आंसर दोगे 1 और 2 लीटर पर डे मिल्क इज सिक्रीटेड. दूसरा, मिल्क इनिबिटरी पेप्टाइड्स पाए जाते हैं बेटा मिल्क में, विच इनिबिट्स द प्रोलैक्टिन सिंथेसिस. जो मिल्क में मिल्क इनिबिटरी पेप्टाइड्स होते हैं, ये इनिबिट करते हैं बेटा प्रोलैक्टिन के सिंथेसिस को. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इफ मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट फुल्ली एम्प्टी, then the peptide accumulates and inhibits the milk production. Okay? NCERT से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा. ब्रीस्ट आर द सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, बट द मेमोरी ग्लैंड्स आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. इट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स. तो इन पॉइंट्स के साथ हम ब्रीस्ट और एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाला पार्ट खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम ओवरी और ओवरी की स्ट्रक्चर और ओवरी में डेवलप होने वाले फॉलिकल के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे. थैंक यू.